capital markets, followed by a presentation, which is the main topic for today, by Mr. Sujay Shah, who is the director with Mangal Keshav Financial Services LLP Limited. And post his presentation, I would come back again to conclude, and we would have question answer sessions after that. So before I begin with the presentation, let me make a few announcements, because this is what we always do, some disclaimer. I would like to inform you that this presentation is being recorded. So whatever is taking place at your side, it is visible and audible as well. So we would refrain you from keeping your mics and audios on. So it is a humble request from us to please put your audio and video on mute, please. Secondly, you may have a lot of queries at the end of this presentation, but I request each and every one of you to please raise your queries in the chat box, which is, and we would take the questions one by one at the end of the session. And if there is something that you want to know, I would give you some email IDs, and maybe you can take a note of it while I present. So this is it. So today's Yes. So today's presentation is on how to buy and sell securities on the stock exchange. Give me a moment, please. I will share my presentation and begin with the presentation. Another request is I request all participants, whoever have their audios and videos on, to please switch it off, because it helps in conducting the session smoothly. Or else there is a little bit of hindrance which not only disturbs the speakers but also disturbs the participants as well. So let me begin with my presentation, and I will give you a brief introduction on the speaker currently. So Mr. Sujay Shah is the partner with Mangal Keshav Financial Services LLP. He's a director with Mangal Keshav Commodity Brokers Limited. He's a director with Mangal Keshav Capital Limited. He's a SEBI registered analyst, been in the stock market since 1992, and he's also a stock market trainer. So we have got the right person. So we have got the right person. I think my voice is okay. So with the topic, keeping the topic in mind, I think we have the right person to speak to us today on how to buy and sell securities. So give me a moment. I will stop sharing my video, but I will share the presentation. Good evening, Mr. Shah. We have Mr. Shah also available with us. He's currently, Good evening, everybody. yes, sir. So should we begin the presentation, sir? I'll go ahead with it. Yes. Mr. Shah, can you confirm if my presentation can be seen? Yes. Yes, it can be. Thank you, sir. ओके आज का सेशन जो है हम आई कंप्लीटली आई थॉट आई फॉलो इट एज आई बिगिन द प्रेजेंटेशन. आज का सेशन जो है हिंदी में होगा, तो मैं प्रेजेंटेशन अभी स्टार्ट करती हूँ. अगर हम देखते हैं स्क्रीन पे, इस स्क्रीन फर्स्ट स्लाइड पे हमें दिख रहा है कि सेबी इज द मार्केट रेगुलेटर.
और सेबी जो है स्थापित हुआ था 1992 में अंडर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। सेबी का मुख्य एम है, I think my Mr. Shah, is your voice echoing? No, not really. It's okay. Quite okay. Okay, I thought it was a little because I can hear a little bit when I speak. Okay. Okay. सेबी का मुख्य एम है कि thank you so much. Someone also mentioned there is no there is echo. Yes. Let me connect this again. Give me a moment. Yes. So इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि सेबी जो है हमारा मार्केट रेगुलेटर है और इन सेबी का मुख्य एम है कि प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, सेकंड इज protecting the interest of the investors, second is regulating the development of securities market और रेगुलेट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस भी। नाउ सेबी जो है लाइसेंसिंग अथॉरिटीज है इन सब इंटरमीडियरीज को जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंजेस, कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंजेस लाइक एनएससी, बीएससी, एमएससी, एमसीएक्स वगैरह, intermediaries like depository, NSDL or CDSL, and other intermediaries जैसे stock brokers, RMP, mutual funds, investment advisors, etc. Now, SEBI जो है उनके कुछ registrations norms रहते हैं और इसके द्वारा SEBI कुछ ये intermediaries का working भी इंस्पेक्ट करते हैं और कभी-कभी नॉन कंप्लायंस के वजह से उनको पेनलाइज भी कर सकते हैं। तो इन सब पावर्स के साथ सेबी जो है मार्केट को रेगुलेट करते हैं। एक्सक्यूज मी, यस, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, बहुत डिस्टर्ब आ रही है ना? या ओके, लेट मी discontinue, I think. What I would do, Mr. Shah, have you the presentation or should I be sharing your presentation? I will take this presentation after you. Yeah, I have the other presentation with me, the buying and selling. Okay, so I'll stop sharing. But I think the echo is gone, is it now? I don't think there is an echo, but I don't know, but people are still complaining. आई Yeah, थिंक yeah. किसी का माइक खुला हुआ है, उनसे आ रही है। या I think- तो पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने माइक्स, ऑडियोज, वीडियोस प्लीज म्यूट पे रखें, क्योंकि सुबह ये प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, अभी भी नहीं आ रही है एक्चुअली। Is the echo coming now? Can someone else confirm? No, it's Not coming. It's not coming right now. It is still echoing, ma'am. Okay, so I would request Mr. Shah. Mr. Shah, I will discontinue. I'll stop sharing my presentation. You can mute everyone, no? I have muted everyone, sir. But still people are. Mute. Okay, this is better. Is this better now? Can I be heard? Can someone Yes, this write is on better. chat? It's Yes, okay now. It's fine. okay. Yeah, thank you so much. Okay. So let me come to the previous slide. Okay, so this was the role of SEBI जो है market intermediary of the capital markets. So basically ये this was the first slide. The second slide हमको हम सबको पता ही होगा कि in order to start investing in the securities market हमें 3 अकाउंट लगते हैं. One is the bank account, trading or the broking account and the demat account. Okay, लेकिन जब भी हम लोगों ने जब भी फ्यू इयर्स बैक जब भी अकाउंट ओपन किए होंगे तभी हमको ईच
इंटरमीडियरीज के पास जाके अकाउंट ओपन करना पड़ा होगा, लेकिन अभी जो इंटरमीडियरीज है या डीपीस है वो 3-in-1 अकाउंट ऑफर करते हैं. Okay, now during this period of lockdown, not only physical account opening was possible, लेकिन online account opening भी possible हुआ था क्योंकि government ने बहुत सारे restrictions निकाले थे in relation to the Information Technology Act वगैरह. Okay, so now इन तीनों अकाउंट में से एक अकाउंट है जो मैंडेटरी भी नहीं है, आई मीन इट्स नॉट रिक्वायर्ड, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट. You require trading account only if you want to buy and sell shares in the stock exchange. अभी NSDL के बारे में एक I'll tell you a few points on this. NSDL establish हुआ था नवंबर 1996 में और इस साल हम 25 साल कंप्लीट करेंगे. तो इन 25 years में हम कहते हैं कि हम वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपॉजिटरीज है पूरे दुनिया में. क्यों? इसके 2 पैरामीटर्स की डिस्क्रिप्शन मैं करूंगी नेक्स्ट 2 स्लाइड्स में. और थर्ड इज लार्ज नेटवर्क ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स अक्रॉस द कंट्री. जैसे कि आप जानते रहेंगे कि इन ऑर्डर टू ओपन अ डीमैट अकाउंट आपको डीपी के साथ अकाउंट ओपन करना पड़ता है. आप एनएसडीएल के पास आके नहीं अकाउंट खोलते. जैसे कि बैंक अकाउंट, यू ओपन अ बैंक अकाउंट बैंक के साथ, नॉट विथ आरबीआई. सिमिलरली ये जो अकाउंट ओपन करते हैं वो हमारे एजेंट्स है जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है. और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स अपने सर्विसेज वेरियस सर्विस सेंटर्स, नेट फ्रेंचाइजीज, ड्रॉप बॉक्स वगैरह से हमें सर्विस करते हैं इन्वेस्टर्स को. सो जैसे कि ये मिडिल पर्सन होते हैं बिटवीन द डिपॉजिटरी एंड द इन्वेस्टर्स इज द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. नाउ एक वन इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है कि इनका रीच जो है हम कहते हैं कि वी हैव कवर्ड 99.17% of the pin codes in India where there is a service center. Now total number of service centers in India is about 36,044, almost more than 34,000 service centers है पूरे दुनिया में. नाउ जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे 25 साल कंप्लीट हुए हैं और इन 25 सालों में व्हाट इज द प्रोग्रेस हमने किया है वो इस डायग्राम में दिखता है. और इस फिगर का कंपैरिजन जो कस्टडी वैल्यू हम कहते हैं, कस्टडी वैल्यू एज ऑफ मार्च 2021 was 243.75 lakh crores. Now ये कस्टडी वैल्यू और ये फिगर क्या है, इतना बड़ा फिगर जो हमारे जीडीपी से ज्यादा या ऑन पार हो सकता है या बैंक डिपॉजिट से भी ज्यादा है इंडिया के बैंकों में. तो ये कस्टडी वैल्यू जो है ये वैल्यू है सब सिक्योरिटीज की जो डीमैट अकाउंट्स में है. जो इन्वेस्टर्स है हमारे more than 2 crore investor accounts that we have about 2.17 crore investor accounts. तो ये इन्वेस्टर अकाउंट्स में जो जमा पूंजी है इन्वेस्टर्स की उसका वैल्यू है 243.75 लाख करोड़. अभी ये फिगर जो है मन में ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट 2 स्लाइड्स में हम उसको कंपेयर करेंगे और हम कहते हैं कि वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट. व्हाई? ऑन व्हाट बेसिस? अब इस स्लाइड में देखेंगे तो हम कंपेयर कर रहे हैं द बैंक डिपॉजिट्स एंड द कस्टडी वैल्यू ऑफ एनएसडीएल एज ऑफ 31st of March. बैंक डिपॉजिट्स जो थे बैंक्स के on 31st of March 2020 was 140 lakh crores. ओके और एनएसडीएल का कस्टडी वैल्यू था 160 लाख करोड़ जो हमारे बैंक डिपॉजिट से भी ज्यादा था ना. ये फिगर फिर भी कम है क्योंकि March 31st 2020 को द मार्केट्स वर नॉट डूइंग दैट वेल. But now if you see the custody value has reached 243.74 lakh crores. Second comparison. GDP और custody value. Now GDP जो है, if you see in this diagram as on 31st of March 2020, the GDP was at 203 lakh crores. whereas custody value था 160 पे.
So it was a little lower than the GDP. But now if you see and if you compare it to the GDP, maybe it would be on par हो सकता है, नहीं तो उससे ज्यादा GDP से ज्यादा हो सकता है. Now this diagram आपको explain कर सकता है the total working of NSDL, how NSDL operates. Okay. NSDL is called a central system. Why central system कहते हैं हम? क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है वो पहले NSDL के सिस्टम में रिकॉर्ड होता है. At the end of it, at the last step, the investor account is credited. Whatever action has to take place takes place in the end. So now ये जो NSDL के सेंट्रल सिस्टम को बहुत सारे एंटिटीज कनेक्टेड रहते हैं, जैसे कि CDSL विच इज द अदर डिपॉजिटरी. क्यों कनेक्टेड है? हम सोचेंगे अरे CDSL के पास तो है, लेकिन इधर CDSL डायग्राम में क्यों दिख रहे हैं? तो बेसिकली अगर एक इन्वेस्टर CDSL का हो और दूसरा NSDL का हो और there has a transfer to be taken place between those two investor accounts, is it possible? Yes, it is possible. That is the reason why CDSL is connected to NSDL and the transfer takes place to the interdepository transfer. Now issuer company जब भी 1998 में स्टार्ट हुआ था तभी सभी लिस्टेड कंपनीज इट वाज मैंडेटरी आफ्टर अ फ्यू इयर्स फॉर देम टू मेक देयर शेयर्स अवेलेबल फॉर डीमैट. ओके, बट then though that process happened, so what happened, कंपनीज जो अपने सिक्योरिटीज को डीमटेरियलाइज करने थे वो NSDL के साथ एक ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट साइन करके उनके सिक्योरिटीज या उनके कंपनी या उनके कंपनी को एक आईसिन एलोकेट करते हैं, सिक्योरिटी को, स्क्रिप्ट को, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो एक यूनिक कोड होता है ईच सिक्योरिटी के लिए. लेकिन ये जो कोड है दोनों डिपॉजिटरी के बीच में वो कोड कॉमन रहता है सिक्योरिटीज का. क्यों? क्योंकि इट बिकम्स इजी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग. वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि NSDL इज द ओनली entity in India to give this ISIN number. So this responsibility of creating the ISIN जो है वो NSDL को दी गई है by the international organization called ANNA. Now recently, not recently बोलूँगी, लास्ट कोविड स्टार्ट होने से पहले एक सर्कुलर आया था जहाँ पे अनलिस्टेड कंपनीज भी अभी उनको अपने शेयर्स को डीमटेरियलाइज फॉर्म में ज्वाइन करना चाहिए, ऐसे एक सर्कुलर आया था. तो अगर आपके पास या आपके किसी पहचान या फ्रेंड्स या फैमिली के पास ऐसे शेयर सर्टिफिकेट्स है जो डीमटेरियलाइज नहीं है और आपको डीमटेरियलाइज करने हैं, तो आपको हमारे साइट पे जाके देखना होगा कि वेदर दिस सिक्योरिटीज आर अवेलेबल फॉर डीमैट और नॉट. सेकेंडली ये चेक करते हुए आपको ये और एक चीज चेक करनी होगी. आपको और एक बात चेक करनी होगी कि वेदर द रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं. क्योंकि क्या होगा इस जब भी आप डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म अलॉन्ग विद शेयर सर्टिफिकेट DP के पास देते हो डीमटेरियलाइज करने के लिए, वो DP से रजिस्ट्रार के ऑफिस जाता है जहाँ पे चेक होने के बाद आपके सिक्योरिटीज को E-फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं. लेकिन कुछ रीजंस के वजह से कभी लाइक सिग्नेचर मिसमैच और सम क्वांटिटी मिसमैच और आईसिन मिसमैच की वजह से रिजेक्टेड होते हैं. तो क्या पता, तो इमीडिएट पेंडिंग केसेस का, लेकिन कभी कभी ये R&D सर्विस प्रोवाइड नहीं करते कंपनी को. तो ऐसे सिचुएशन में अगर ऐसा R&D हो जो कंपनी को सर्विस नहीं प्रोवाइड करे, तो यू वुड हैव टू वेट फॉर दैट सिचुएशन टू बी हैंडल्ड एंड ओनली आफ्टर दैट, उसके बाद ही आप अपना सिक्योरिटीज डीमैट के लिए दे सकते हैं.
third entity his diagram में है is, I will not go through all, is the clearing, जैसे कि clearing corporations है, stock exchange है जहाँ पे buy and sell trading takes place, whereas clearing corporation entity इसका settlement कहाँ होता है, buy and sell का clearing corporation पे होता है। तो जैसे कि NSE का clearing corporation है NSE clearing limited, और BSC का क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ICCL। Now, what are the services provided by a depository? I will not go through all again. Account opening तो आप जानते रहेंगे. Demat is conversion of physical shares into electronic format. Remat is opposite उसका, जैसे electronic को physical में convert करने के लिए mutual fund के conversion और redemption भी हो सकते हैं। और change of bank account details important point है, लेकिन मैं during the presentation बोल दूंगी at the end of it। And अकाउंट फ्रीज इज बेसिकली, अगर आपके पास शेयर्स हो कुछ कंपनीज के और आपको लगता है कि आप उसको सेल नहीं करेंगे, रखेंगे अपने अकाउंट में, क्योंकि आपको पता है ये ब्लू चिप कंपनी है, आई कैन कीप इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो आप अकाउंट लेवल फ्रीज कर सकते हैं। आईसिन लेवल इज वेयर सपोज आपके पास स्टेट बैंक है, HLL है, हिंदुस्तान लीवर है, सॉरी एंड व्हाटएवर HDFC बैंक है, व्हाटएवर सिक्योरिटी, अगर आपको लगता है कि आपको एक स्पेसिफिक कंपनी को फ्रीज करके अकाउंट में रखना है, वो भी कर सकते हैं, उसे आईसिन लेवल फ्रीज कहते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी को एक आईसिन दिया जाता है, जैसे कि मैंने पहले कहा है। और क्वांटिटी लेवल इज, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक के शेयर आपके पास 200 शेयर हैं, 100 शेयर आप ट्रेड करना चाहते हैं और 100 आपको फ्रीज करने हैं, आप फ्रीज कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आप कैसे अवेल करेंगे, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ बात करके आप ये अकाउंट अपना फ्रीज कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ। नाउ आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर शाह to continue with his presentation. I'll stop the sharing. I'll give you rights, sir. Yes. Sir, you're already the presenter. I am okay. Just one minute. Is my sharing visible? Yes, sir, it is. ओके नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुजय और मैं आपसे अभी एक्सचेंज में बाय और सेल कैसे करते हैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। हम लोग शुरू करते हैं कि ट्रेडिंग करने के पहले क्या ज़रूरी है मार्केट के लिए। मार्केट में आपको क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी। मेन तो आपको 3 अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे, एक है बैंक अकाउंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट और डिपॉजिटरी अकाउंट। जैसे कि मैम ने आपको बताया, अभी तीनों एक ही ब्रोकर या एक ही डीपी भी आपको ऑफर करती है तीनों अकाउंट ओपन करने के लिए। और बैंक अकाउंट कोई भी बैंक के साथ हो सकता है, डीपी आपका NSDL CDSL कहीं भी हो सकता है, और ब्रोकर आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए सेबी के पास। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू ही काम करिए, वरना कोई भी ऐसे ब्रोकर बोलेगा कि मैं ब्रोकर हूं तो उनके साथ मत काम करिएगा, उनके साथ मत जुड़िएगा। सेबी रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। फिर आता है कि आपको स्टॉक्स कैसे पिक करने हैं। आपके जब इन्वेस्टमेंट आप शुरू करते हो तो प्रॉपर राइट स्टॉक कौन से लेने हैं, वो बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। कभी भी रूमर्स या आपने कहीं सुना है किसी ने आपको टिप दी है, उसके ऊपर काम मत करिएगा। ज्यादातर लोगों का लॉस वही होता है और उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट में कभी प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस ही होता है। तो वो टिप पे या कहीं से सुन के आप काम मत करिए, आप खुद का स्टडी करिए, खुद की एनालिसिस करिए। उनकी कंपनी का बैलेंस शीट आपको जो पढ़ना जरूरी लगता है पढ़ लीजिए। आपका पास्ट परफॉर्मेंस कंपनी का देखिए, कैसे परफॉर्म किया, कितना डिविडेंड दे रहे हैं, प्राइस मूवमेंट कैसा है, वो सब देख स्टडी करने के बाद ही आप कोई भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करिएगा। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले ये सेबी ने बताया है कि इन्वेस्टमेंट एक हाईवे के ऊपर आप ड्राइव कर रहे हो,
पर आग पे पट्टी बंधी हुई है, वैसे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको प्रॉपर एनालिसिस करके ही इन्वेस्टमेंट करना है। आपको आपका अप्रोच ऐसे होना चाहिए कि आपको अच्छा प्रॉफिट हो, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हो, तो वैसे आपको इन्वेस्ट करना है। पीछे का परफॉर्मेंस, कंपनी का पिछला परफॉर्मेंस देख के और उसका फ्यूचर ग्रोथ बराबर से समझ के फिर ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ये सब बेसिकली आपको खुद करना होगा, क्योंकि कोई भी आपको कुछ बोले उस पर भरोसा मत रखिएगा। तो उसके पहले फैक्टर्स कौन से देखने हैं कि कंपनी में अच्छा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट अच्छा है, कंपनी अच्छी है। तो उसके पहले आपको थोड़े प्रश्न खुद पूछने होंगे कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है कि नहीं, उनका सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं, उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं ईयर ऑन ईयर। कंपनी प्रॉफिट अच्छे से बना रही है कि केवल खाली उतना ही बना रही है जितनी उनकी जरूरत है। वो अपने सारे जो भी बोरोइंग्स है, जो भी डेट है, वो सारे रीपे कर पाएगी, उतना कैश और उतने असेट्स कंपनी में है कि नहीं। कंपनी का पोजीशन स्ट्रांग है कि दूसरों के साथ जो अलग उनके ही सेम बिजनेस में दूसरी कंपनी के साथ compete कर सके, वैसे उनके वो उतना स्ट्रेंथ है कि नहीं कंपनी में, वो भी देखना है। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि सारा डेटा जो आपके पास है वो कंपनी का ग्रोथ और इकोनॉमिक डेटा कितना कंपनी पे अफेक्ट होगा। कोई भी गवर्नमेंट का चेंजेस आते हैं, कुछ भी आते हैं, तो उसका कंपनी का ग्रोथ और स्टॉक प्राइस पे कितना फर्क पड़ेगा। कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ यानी उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना है, इनकम स्टेटमेंट देखना है, बैलेंस शीट लास्ट 2 साल के बैलेंस शीट देखने हैं, उनका लेटेस्ट प्राइस और वॉल्यूम देखना है, हिस्टोरिकल डेटा देखना है, और कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स जो भी डिविडेंड है, बोनस, राइट्स जो भी किए हैं वो सारा स्टडी करना है। उनका पी रेशियो और इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर्स का देखना है। ये सारा आपको फंडामेंटल में मिलेगा। कंपनी का फंडामेंटल आप देखोगे एनएसई बीएसई साइट पे मिलता है ये सारा इंफॉर्मेशन, आप वहीं से आपको समझ आएगा। बेसिकली बिजनेस मॉडल कंपनी का समझना है कि ये मॉडल जो बिजनेस में है वो बिजनेस कितना ग्रो कर पाएगा आगे जाके। लगता है आगे जाके इतना नहीं ग्रो कर पाएगा तो थोड़ा वीक इन्वेस्टमेंट हो जाता है। आप उनके कंपटीटर्स, वही कंपनी के कंपटीटर्स भी कैसे कर रहे हैं, वो अच्छा कमा रहे हैं कि नहीं, और आपने जो सिलेक्ट की है कंपनी वो उनके सामने कैसा कर रही है, वो भी आपको देखना है। अभी आपको देखना है कि मेन तो कंपनी का रेपुटेशन कैसा है, उसका प्रमोटर्स कौन है, उनके शेयर होल्डर्स और प्लेज शेयर्स कितने हैं। कंपनी का प्रमोटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्होंने कंपनी शुरू की है और उनके पास कितना शेयर होल्डिंग रखा है खुद पब्लिक को देने के पहले, वो भी देखना जरूरी है। उसमें से उनके होल्डिंग में से प्लेज कितने किए हैं, यानी बैंक के सामने उसमें लोन लिया है जितने भी शेयर्स के ऊपर, वो भी देखना बहुत जरूरी है। ऐसा है कि पूरे शेयर्स का उन लोग ने प्लेज करके पैसा उठा लिया है तो कंपनी वीक हो सकती है, उनके पास इतना कैश फ्लो है नहीं। फिर है स्कोप, है उसका ग्रोथ कैसे होगा, कंपटीशन, प्रॉफिटेबिलिटी, उनकी इंडस्ट्री कैसे चल रही है, वो पर्टिकुलर कंपनी की कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं उन लोग, वो भी देखना जरूरी है। फिर कंपनी का फाइनेंशियल्स भी देखना जरूरी है, उनका अर्निंग पर शेयर कितना है और पी रेशियो कितना है, बुक वैल्यू कितना है, ये सारे फंडामेंटल्स आपको चेक करने हैं। उनका कैश फ्लो कैसा है, कितना पैसा आ रहा है उनके बिजनेस में, तो सारा का सारा पैसा कैश में, और कैश यानी वो बैंक में जमा है, कहाँ है वो कैश, वो भी आपको देखना है। पास्ट में रिकॉर्ड देखना है कि पास्ट में टर्नओवर कितना था, कितना सेल्स किया है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी रही है। आप लास्ट 2-3 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पास्ट में उन्होंने अच्छा ही किया है और अभी भी अच्छा ही कर रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर लगता है कि पास्ट में ज्यादा कर रही थी और अभी कम हो रहा है, हाँ कोविड के कारण से कम हो सकता है उनका टर्नओवर, बट उसके पहले का कैसा रहा है और आगे वो क्या बता रहे हैं, वो भी देख के ही आपको इन्वेस्ट करना है। डिविडेंड कितना दिया है लास्ट 5 साल में, वो भी देखना है। डिविडेंड पेइंग कंपनी नॉर्मली प्रॉफिट कंपनीज होती है और इसमें इन्वेस्ट करना अच्छा होता है, तो डिविडेंड पेइंग कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट रखिएगा। फिर डेट ऑफ द कंपनी, कंपनी का कितना पैसा बाहर उधार लिया है बाहर से, वो देखना भी जरूरी है। उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस ट्रैक रिकॉर्ड यानी उनका कंप्लायंस कैसा है, सारे उन लोग ने जो भी उनके पास से एक्सपेक्टेड थे, गवर्नमेंट ने जो भी रिटर्न्स भरने हैं, जो भी उनका गवर्नमेंट के साथ रहा है या स्टॉक एक्सचेंज में भी उनका कैसे रहा है कंप्लायंस, वो भी देखना जरूरी है। उनके ऊपर कोई ज्यादा केसेस है नहीं या ज्यादा कंप्लेन्स नहीं है, वो भी देखना है आपको। ये था कंपनी के बारे में। अभी हम आते हैं कि आपको जब भी आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं और आपको ऑर्डर प्लेस करना है, तो आपको क्या क्या, आप कहाँ कहाँ से कैसे ऑर्डर प्लेस कर सकते हो बाइंग और सेलिंग के लिए,
स्टॉक मार्केट में। आप जब भी रजिस्टर करते हो आपका ब्रोकर के साथ, तो ब्रोकर के साथ आपका डीपीबी होगा और ट्रेडिंग अकाउंट होगा। बैंक अकाउंट कहीं भी हो सकता है, कोई भी बैंक में, वो तो ब्रोकर आपका मैप करके देगा। आपको अभी शेयर खरीदने हैं या बेचने हैं, तो आप पहले तो ब्रोकर के ऑफिस में जा सकते हैं खुद, और वहीं से ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप फोन कॉल करके ट्रेड कर सकते हैं, ब्रोकर के डीलर्स होते हैं उनके पास, वहां फोन कॉल करके ट्रेड कर सकते हैं। आप ईमेल भी कर सकते हैं स्टॉक ब्रोकर को। ईमेल का एक ही रहता है कि शायद कभी टाइम लग जाए, ऑर्डर उनके पास ईमेल थोड़ा लेट जाए, आपका प्राइस मिस हो, तो ईमेल थोड़ा कभी कभी स्लो हो जाता है, पर ये एक ऑप्शन अवेलेबल है कि ईमेल से भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। या फिर आप स्टॉक ब्रोकर की वेबसाइट है या ऐप जो ऑनलाइन के लिए दिया है आपको, आप वहीं से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ये अलग अलग तरीके हैं कि ब्रोकर के ऑफिस में आप खुद जाते हो तो आपको क्या क्या देखना है। जहां उनकी ब्रांच है या ऑफिस, मेन ऑफिस है, वहां आप जाते हो तो आपको वहां एंट्री करनी पड़ती है रजिस्टर में कि आप वहां गए थे खुद, और बाइंग और सेलिंग करने के लिए। आप वहां जाके खुद देख सकते हो वो स्क्रिप्ट में क्या रेट चल रहा है, क्या बाइंग क्या सेलिंग का क्या रेट है, क्या वॉल्यूम है, वो सारा आप खुद दे सकते हो वहां। आप अपना स्क्रिप्ट बताएंगे, उनका रेट बताएंगे, क्वांटिटी बताएंगे, और कौन से टाइप का ऑर्डर आपको प्लेस करना है, बाय का, सेल का, कौन से एक्सचेंज में प्लेस करना है, और ये सारा आप इंफॉर्मेशन आप स्टॉक ब्रोकर को देंगे, तभी वो ऑर्डर आपका प्लेस कर पाएगा। फिर आपको एक प्रूफ ऑफ प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर देना है ट्रेडिंग स्टॉक मेंबर को। ये वेरीफाई करेगा कि जब भी सेशन एंड होता है तभी आपको एक प्रूफ उन लोग देते हैं कि आपने ऑर्डर प्लेस किया था और उसका ट्रेड हो गया है। वो कॉन्ट्रैक्ट नोट के द्वारा भी आते हैं जो 24 घंटे में आपके पास आने चाहिए। आप वहीं जो ब्रोकर के ऑफिस में गए हो तो वहीं से भी आपको मिल सकता है। और ये ट्रेड्स आर सब्जेक्ट, इसके ऊपर मार्जिन आपका अवेलेबल हो तो ही आपका ट्रेड जाएगा। ये मार्जिन जो नया आया है अभी सेबी का, कि सारे ट्रेड्स के पहले आपका मार्जिन जमा होना चाहिए ब्रोकर के पास, मिनिमम 25%। तो वो बहुत जरूरी है, वो होगा तो ही आपका ऑर्डर प्लेस किया जाएगा, वरना आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो सकता है। अभी काफी ब्रोकर्स ऑनलाइन ट्रेडिंग और वेबसाइट और वहीं से भी ऑनलाइन से भी शुरू किया है। आप ऑर्डर्स खुद प्लेस कर सकते हो। ब्रोकर्स के ऐप्स होते हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हो, जहां आप रजिस्टर किए हैं जिस भी ब्रोकर के साथ, उनके ऐप्स होंगे, वही आपको वो डाउनलोड करने हैं। आपको अपना ब्रोकर आपको ये करके देगा, ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट और बैंक अकाउंट सारे तीनों वही एक लिंक में वो अटैच करके दे देंगे। एक इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग का एक अग्रीमेंट रहता है जो ब्रोकर के साथ आपको साइन करना है अलग से। वो केवाईसी के फॉर्म में नॉर्मली इंक्लूड होता है, बट कभी कभी ब्रोकर अलग से भी लेते हैं। उनका कॉस्ट शायद कभी कभी ब्रोकर के पास कोई पर्टिकुलर ऐप का यूज करने का कॉस्ट भी रहता है, तो वो आपको वही बता देंगे कि क्या कॉस्ट रहेगा इसका। आपको विजिट वेबसाइट से स्टॉक ब्रोकर पे विजिट कर सकते हो उनके वेबसाइट पे, या उनका ऐप इंस्टॉल करके वहां से ट्रेडिंग कर सकते हो। ब्रोकर आपको इन्वेस्टर होने के नाते आपको लॉगिन और यूजर नेम और पासवर्ड देंगे जो केवल आपके पास ही रहेगा। कोई स्टॉक ब्रोकर के पास टू फैक्टर वेरिफिकेशन भी होता है, एडिशनल ओटीपी भी उन लोग मांगते हैं। ओटीपी आता है जब आप लॉगिन करने का ट्राई करते हो, जब एक ओटीपी आएगा और ओटीपी डालने पे ही आपका लॉगिन मिलेगा। वो एक एडिशनल रिस्क पैरामीटर के लिए वो एक रखा है। उस पर आपको जब भी आप लॉगिन कर पाओगे तो आपको करंट मार्केट प्राइस, वॉल्यूम डिटेल्स, सारा कुछ आपको मार्केट वॉच में मिल जाएगा। और ये सेम ब्रोकर का टर्मिनल जो है, जो भी मार्केट एक्सचेंज में रेट्स चल रहे हैं, वो सेम रेट्स आपको यही दिख जाएंगे। आपको जब आप ऑनलाइन में ऑर्डर प्लेस करते हो तभी ऑलवेज चेक करना है आपका कि ऑर्डर्स जो आप प्लेस करते हो वो बराबर स्क्रिप्ट आपने बराबर डाली है कि नहीं, उनकी क्वांटिटी बराबर डाली है कि नहीं। ये एक मार्केट वॉच पे से ये एक ऑर्डर का विंडो होता है जहां आपको ये देखो, ये सैंपल दिया हुआ है कि जहां से आपको बिड पता चलेगी, कितने ऑर्डर्स हैं, क्वांटिटी क्या है, और सामने बायर सेलर कौन कौन है। वो आपको बेस्ट 5 बायर, बेस्ट 5 सेलर्स पता चल जाते हैं। वो स्क्रिप्ट का दिन का ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम, एवरेज ट्रेड प्राइस, लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी, सारा कुछ मिल जाएगा। आपको अपना स्टॉक सिलेक्ट करना है, आपको जो स्टॉक में काम करना है वो स्टॉक आप सिलेक्ट करिए, और आप बाय या सेल ऑर्डर आप वहीं से डाल सकते हो। आपको क्वांटिटी रखनी है और प्राइस भी मेंशन करना है। उसमें कभी कभी दो ऑप्शन रहते हैं, मार्केट या लिमिट ऑर्डर्स। मार्केट ऑर्डर्स में आप सिलेक्ट करोगे तो जो रेट चल रहा है वही रेट से आपका
बिक जाएगा, रेट चेंज हो गया तो वो रेट से बिक जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप लिमिट ऑर्डर डालिए, तो थोड़ा सेफ्टी रहेगा कि आपका कोई भी रेट से नहीं बिक जाएगा या नहीं आ जाएगा आपके पास, आपका लिमिट रहेगा उस पर। ये स्टॉक क्वोट जो आप जब भी ऑर्डर्स प्लेस करते हो तभी कोई भी स्टॉक का एक पर्टिकुलर प्राइस आपको दिखता है, उसमें आपको क्या क्या देखना है वो इसमें है। कंपनी का स्टॉक का डेटा पॉइंट्स सारे मिलते हैं उसमें। थोड़े में पता चल जाता है कि आज कंपनी का रेट क्या चल रहा है, ऊपर है नीचे है क्या है। तो उसमें आता है कि कंपनी का नाम और उनका सिंबल, जो एक्सचेंज का सिंबल होता है वो आता है। एक स्टॉक प्राइस आता है, उसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो, आज का हाई और लो कितना चल था, सुबह से लेके जब भी ऑर्डर प्लेस करते हो तब तक का हाई लो आपको वहां पता चलता है। इसका पहले का क्लोजिंग प्राइस यानी जो लास्ट ट्रेडिंग डे था उसका क्लोजिंग प्राइस क्या था, उसका 52 वीक हाई, एक साल में कितना हाई और कितना लो बनाया है कंपनी ने, वो आपको वहां से मिल जाएगा। नेट चेंज यानी कल जितना था और आज कितना है, उसका कितना चेंज हुआ है, नेगेटिव है पॉजिटिव है कल से, वो आपको नेट चेंज में पता चल जाएगा। पी रेशियो आप वो फंडामेंटल से पता चल जाएगा, उसका पी रेशियो क्या चल रहा है। कभी डिविडेंड दिया था तो डिविडेंड डिटेल्स भी वहां मिलते हैं, और आज का कितना वॉल्यूम हुआ है वो सारा वहां मिल जाता है वही विंडो पे। अभी इसमें ये आपको एक ध्यान रखना है कि ऑर्डर्स प्लेस करते वक्त आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो इसमें दिया गया है। मेन तो ट्रेडिंग पासवर्ड कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए आपका, ये ऑनलाइन के लिए है जो आप ऑनलाइन यूज करते हो, तो आपका पासवर्ड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रखिए। किसी को आसानी से गेस करना है तो नहीं कर सकता, वैसे रखिए, नहीं तो क्या होगा, कोई भी आपके अकाउंट में लॉग इन करके ट्रेड मार देगा, आपको पता भी नहीं होगा, और आपको बाद में लॉस होने के बाद या बाद में ही पता चलेगा कि किसी ने ट्रेड किया है आपके अकाउंट में। इसमें छोटे पासवर्ड या इजी पासवर्ड मत रखिए, आपके नाम है, सरनेम है, डेट ऑफ बर्थ, मैरिज एनिवर्सरी, ये सब मत रखिएगा। ये आपके केवाईसी फॉर्म में भी कभी कभी होता है, कभी किसी को पता है तो वो वहां से ट्राई करके आपका लॉगिन कर सकता है। ये आप कभी भी आपका पासवर्ड कहीं लिखिए मत, कोई भी पेपर पे या कहीं भी लिखिएगा मत, आपको याद रखना है। फिर आपका शेयर लॉगिन डिटेल्स किसी के साथ भी शेयर ना करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शेयर करने पे मैंने बताया कि कोई भी ट्रेड कर सकता है आपके अकाउंट में। वेब ब्राउजर जो आप यूज करते हो कभी जो इंटरनेट के थ्रू, तो वो कभी कभी वो खुद ब्राउजर अलाउ करता है कि आप पासवर्ड सेव करके रखो हमारे पास, वो मत करिएगा, क्योंकि कोई और आपका लैपटॉप आपका कंप्यूटर यूज करता है और लॉगिन करने की ट्राई की तो आसानी से लॉगिन कर पाएगा। फिर आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट नॉर्मली साइबर कैफे से मत लॉग इन करिएगा, कभी कभी उनके पास एंटीवायरस ठीक नहीं होते हैं, वो आपका पासवर्ड कॉपी कर सकते हैं और खुद लॉग इन करके कोई भी उसमें ट्रेड कर सकता है। आपका पर्सनल पीसी या लैपटॉप है तो ऑलवेज उसमें एंटीवायरस अप टू डेट है कि नहीं वो आपको चेक करना है और अप टू डेट करते रहना है। कोई भी फोन कॉल आता है, ईमेल आता है जो आपसे ये ट्रेडिंग अकाउंट का डिटेल्स मांगता है या बैंक अकाउंट का डिटेल्स मांगता है, तो उससे उनसे दूर रहिएगा, उनको किसी के साथ ये शेयर मत करिएगा। आप जब भी लॉगिन करते हो तो आपका ट्रेडिंग स्क्रीन ऑलवेज आपके सामने है तब तक ठीक है, आप वहां से उठ के जा रहे हो तो लॉक करके जाइएगा, अनअटेंडेड या वहीं ऐसे ही मत छोड़ के जाइएगा कि कोई और बैठ के वहां कुछ कर सकता है। तो आप जब भी छोड़ के जा रहे हो तो आप लॉग आउट करोगे आपके अकाउंट से, पर केवल लॉग आउट करने से आपको वो विंडो भी बंद कर देना है। तो क्या होगा कि कोई फ्रेश लॉगिन करने का ट्राई करेगा तो उनको पूरा यूजर नेम और पासवर्ड दोनों लगेंगे। कभी कभी केवल लॉग आउट होने से आपका यूजर नेम वहां रह जाता है और फिर पासवर्ड कोई गैस करके डाल सकता है। आपका कैशे फाइल्स जो होता है कंप्यूटर में वेब ब्राउजर में, वो आपको रेगुलरली क्लीन और क्लियर करना है। मैं तो बोलता हूँ रोज आप करिएगा ये। आप जो इंटरनेट ट्रेडिंग घर से बैठ के, अभी लॉकडाउन है, घर से बैठ के कभी भी ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये आपको सारा क्लियर करना है, मेमोरी क्लियर करनी है, क्योंकि वहां से कभी कभी वायरस के थ्रू बाहर से लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर आपका फ्री वाईफाई जहां है, सपोज कोई एयरपोर्ट पे जा रहे हो, कोई मॉल में जा रहे हो, वहां से आप ट्रेडिंग मत करेगा। फ्री वाईफाई पे वापस आपका वही होगा कि आपका अनसिक्योर होता है वो नेटवर्क, तो वहां से पासवर्ड या लॉगिन आईडी मिल जाएगा जो 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 वाईफाई प्रोवाइडर है उनको। बिफोर जब भी ट्रेड शुरू करने से पहले आपका ट्रेडिंग एड्रेस HTTPS से शुरू होना चाहिए, HTTP से नहीं। तो ये एक बार एकदम श्योर हो जाइए कि HTTPS से ही आपका ब्रोकर का नाम शुरू होता है। तो S इज फॉर सिक्योरिटी, सिक्योर्ड वेबसाइट S यूज करते हैं।
फिर आप रेगुलरली चेक करिएगा आपका पर्सनल ट्रेडिंग शीट या ऑर्डर बुक एंड ट्रेड बुक कंटिन्यूसली। आप जहां तक कंप्यूटर पे बैठे हो, इनकेस उठ के वापस आते हो तो आपका ट्रेड बुक, ऑर्डर बुक और सारा आप चेक करिए कि कोई अलग से ट्रेड नहीं हुआ है ना। जितना ट्रेड आपने सुबह से किया है या जब तक का किया है तब वही दिखा रहा है कि नहीं। रेगुलरली चेक करिएगा। कॉन्ट्रैक्ट नोट जो आते हैं ब्रोकर के पास से ईमेल पे आते हैं नॉर्मली आजकल, तो ईमेल आपका चेक करते रहिए। कॉन्ट्रैक्ट नोट को ऐसे ही डिलीट मत करिए, एक बार चेक करिएगा कि जो भी ट्रेड आपने किया है कॉन्ट्रैक्ट नोट में बराबर दिख रहा है। टाइम, क्वांटिटी, रेट, सेटलमेंट, जो ब्रोकर से आया है वो तारीख, सारा कुछ आपको रिकंसाइल करना है। बैंक अकाउंट से रिकंसाइल करना है, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, जो डायरेक्ट लिंक है ब्रोकर के अकाउंट के साथ, तो आपको वो चेक करते रहना है। डिमैट अकाउंट का एटलीस्ट वंस अ वीक आप होल्डिंग आपका चेक करते रहिए कि आपके अकाउंट में क्या शेयर्स आए हैं, क्या गए हैं, बाय करने पे आते हैं, सेल करने पे जाते हैं, डायरेक्टली जो ब्रोकर को पीओए दिया है, तो ये भी आपको चेक करना है। ये सारा था कि ऑर्डर आपको, जैसे आप ऑर्डर प्लेस करते हो, ट्रेडिंग करते हो, तो आपको क्या क्या देखना है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए। ये आप एक बार ऑर्डर प्लेस करते हो, आपका ट्रेड हो गया है, अभी ट्रेड कंफर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज भी देती है। स्टॉक एक्सचेंज आपको एंड ऑफ डे एसएमएस भेज सकती है कि आपका क्या ट्रेड हुआ है, कितना का वैल्यू का ट्रेड हुआ है। ईमेल भेजते हैं, एनएससी वाले आजकल भेज रहे हैं ये सारे को। एसएमएस में आपका ट्रेड वैल्यू कितना है और वो डे पे, वो देखो ये नीचे एग्जांपल दिया हुआ है कि ये पैन नंबर में आज ट्रेड वैल्यू कितना था। ये जो आपको नहीं आता है तो आपको एनएससी पे साइट पे जाके आपको उनके साथ रजिस्टर करना है। तो आपका पैन नंबर केवल है जरूरी, वो करने पे ये लोग रजिस्टर करते हैं और ईमेल आपको भेजते हैं, ईमेल भेजते हैं, एसएमएस भेजते हैं। जब भी आपका एंड ऑफ डेट ट्रेड के दिन के बाद आपको ये मिल जाएगा। आता है एक्सचेंज से, देखिए ये इसका सैंपल दिया है यहाँ, एनएससी डायरेक्ट से मेल आया आता है ऐसे कि ये सभी ने सर्कुलर के हिसाब से आपने ये सब किया है और आपको ये सब आपका अटैचमेंट। तो वैसे ये पूरा ट्रेडिंग आपका जो भी किया है वो आपका ईमेल पे भी आता है। आपको खुद क्या चेक करना है आपका ट्रेड होने के बाद, जब भी आप ऑर्डर लेते हो उसका ट्रेड हो गया तो उसके बाद डेटा ट्रेड्स ये अवेलेबल है, एक्सचेंज के वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। T+1 डे पे एक्सचेंज खुद वहां 10 ट्रेडिंग डे का डेटा रखती है, तो आप अपना पैन नंबर डाल के वहीं भी आप अपना ट्रेड चेक कर सकते हैं। जो ब्रोकर का कॉन्ट्रैक्ट नोट सही नहीं है या कोई भी आपको प्रॉब्लम या दिक्कत है तो आप एक्सचेंज के साइट पे जाके ये चेक कर सकते हैं। ये आपको अपना ईमेल और मोबाइल नंबर लेटेस्ट वाला जो भी चेंज इनकेस हुआ है तो वो प्लीज अपडेट करिएगा इमीडिएटली इस पे, उसमें देरी मत करिएगा क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन आपके ईमेल और मोबाइल के एसएमएस पे ही आता है अभी। तो ये अपडेटेड खास रखिएगा, कोई भी चेंज है तो इमीडिएटली ब्रोकर को भी अपडेट करिए, डीपी में अपडेट करिए, बैंक में अपडेट करिए और एक्सचेंज को भी अपडेट कर दीजिए। और ये सारा आपको जब अपडेट करने के बाद एक्सचेंज के ऑनलाइन सिस्टम पे प्रॉपरली अपडेट हुआ है कि नहीं वो भी एक बार आपको चेक करना है, वो आपको ब्रोकर के ऑफिस से आपको पता चल जाएगा। ये वेरिफिकेशन का विंडो है, देखो ये एनएससी पे, एनएससी के साइट पे ये दिखता है वेरीफाई और ट्रेड्स करके, और यहाँ नीचे आप क्लिक करेंगे लॉगिन, आपको एक बार लॉगिन आपका करना है और फिर रजिस्टर करने के बाद आप एवरीडे चेक कर सकते हो कि आपका क्या क्या ट्रेड्स हुए हैं। आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट्स के सामने आप ये कंपेयर करके देख सकते हो कि सेम आपको दिख रहा है कि नहीं दोनों। सेम बीएससी भी है, बीएससी पे ऐसे दिखता है, ये विंडो है उसकी ट्रेड चेक सिस्टम, उसमें सेगमेंट डालना है, ट्रेड डेट डालना है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आप भरोगे अंदर और फाइंड करोगे तो आपको वहां मिल जाएगा। ट्रेड होने के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको आता है, ये कंपलसरी सारे ब्रोकर को उनके इन्वेस्टर या क्लाइंट को भेजना कंपलसरी है सभी के, वो भी 24 घंटे में आपके पास आ जाना चाहिए। अब आज ट्रेड किया है तो कल के ट्रेडिंग टाइम के अंदर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलना चाहिए। उसमें क्या क्या होता है, उसमें तो एक आपने जो ऑर्डर जो ट्रांजैक्शन किया है ब्रोकर के साथ उसका रिकॉर्ड होता है, वो पूरा उसमें दिखता है। ये कंफर्मेशन होता है कि आपने ये ट्रेड किया है, ब्रोकर मना नहीं कर सकता कि नहीं आपने ट्रेड नहीं किया है, ना आप मना कर सकते हो कि नहीं ये मेरा नहीं ट्रेड नहीं था। कोई भी डिस्क्रिपेंसी है तो आपको ब्रोकर को इमीडिएटली बताना है। कॉन्ट्रैक्ट नोट में कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको सही नहीं लग रही है, आप अपने ब्रोकर को इमीडिएटली आप कॉन्ट्रैक्ट नोट आने पे आप बता दीजिए कि क्या उसमें आपको गड़बड़ लग रही है। कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या क्या होना चाहिए, ट्रांजैक्शन की डिटेल्स होनी चाहिए कि आपने क्या बाय किया, क्या सेल किया, डेट, टाइम, प्राइस, क्वांटिटी, ट्रेड आईडी,
सारे चार्जेस वो सारे मेंशन होने चाहिए। जैसे मैंने बताया 24 आवर्स में ये आप जो डेट ऑफ एग्जीक्यूशन है उसके 24 घंटे में आपके पास ये कॉन्ट्रैक्ट नोट आना चाहिए। ई कॉन्ट्रैक्ट नोट आजकल सब भेजते हैं ईमेल आईडी पे, तो आपका ईमेल आईडी अपडेट होना चाहिए ब्रोकर के पास। आप फिजिकल भी कॉन्ट्रैक्ट नोट आप कर सकते हो, पर वो कुरियर से आते आते 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं कभी कभी, तो इनकेस कोई गड़बड़ हुई तो फिर आप उसके बाद कुछ नहीं कर पाओगे, तो उससे अच्छा है ईमेल पे ही मंगवा लीजिए, तो इमीडिएटली आपको मिल जाएगा। और क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ फंड एंड सिक्योरिटीज 3 3 महीने में आपको ब्रोकर के पास से ये एक स्टेटमेंट आती है कि आपका कितना फंड और कितने सिक्योरिटीज उनके पास जमा है या उनके पास उनके रिकॉर्ड पे है। कॉन्ट्रैक्ट नोट ये जैसे वापस वही विंडो है, क्लाइंट कोड, क्लाइंट पैन नंबर, ट्रेड डेट आता है, ऑर्डर नंबर, ट्रेड टाइम, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको ब्रोकर उसके कॉन्ट्रैक्ट नोट पे मिलती है। और क्या क्या ब्रोकरेज लगी है, क्या चार्जेस है, नेट रेट कितना है, कोई बॉट फॉरवर्ड जो अपने फ्यूचर्स में काम किया है, डेरिवेटिव्स में काम किया है, तो उस बॉट फॉरवर्ड का कोई आपका पोजीशन है वो भी उसमें दिखता है। ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नोट का एक सैंपल दिया है कैसी होनी चाहिए। सारे ब्रोकर के अलग अलग होती है। नॉर्मली मोस्ट ऑफ ब्रोकर्स का यही फॉर्मेट फॉलो करते हैं, पर कभी कभी अलग से हो सकती है, बट ये सारा इंफॉर्मेशन इस पे होना चाहिए। जो भी सर्कल किया है वो सारा इंफॉर्मेशन सारे पे होना ही चाहिए। इसमें अभी पेमेंट के बारे में बताया गया है कि जब भी आप बाय करते हो तो आपको सपोज पे इन करना है, तो आपको स्टॉक्स पे आप बेचना, स्टॉक्स पे इन यानी आपने स्टॉक बेचे हैं उसका पे इन करना है, स्टॉक्स अपने को पहुंचाने हैं तो T+2 पे पहुंचा सकते हो। तो F&O में डेरिवेटिव्स में काम किया है तो उसका पे इन T+1 पे होता है, यानी आज किया है तो कल एक दिन के बाद आपको पे इन पे आउट करना है, इसका पे इन करना है। पे इन कैसे करना है, चेक से ही करना है, कोई भी कैश नहीं देना है ब्रोकर को या किसी को भी। बैंक अकाउंट से डायरेक्टली ट्रांसफर करिए, आप क्लाइंट कोड डाल के आपके लिंक होगा तो डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं ब्रोकर के अकाउंट में। फ्री अकाउंट वहाँ जहां जहां है तो वहां ऑटोमेटिकली ये लिंक होता है और ऑटोमेटिक डिडक्ट हो सकता है बैंक अकाउंट से आपने जो परमिशन दी है तो। और कंफर्मेशन ये लेना है आपको ब्रोकर के पास से कि ये पैसा उनके पास पहुंचा है। सिक्योरिटीज का पे आउट जो आपने बेचा है तो ये बेनिफिशियरी अकाउंट में इन्वेस्टर्स 24 घंटे में पे आउट के वक्त जब भी आपने जब भी बाय किया है तो आपके अकाउंट में शेयर्स 24 घंटे में पे आउट के बाद आ जाने चाहिए, यानी T+2 पे पे आउट होता है तो T+ आपने बाय किए हैं आज तो 2 दिन के बाद आप ब्रोकर के अकाउंट में शेयर्स आएंगे, वही दिन उसके 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में आ जाने चाहिए वो शेयर्स। कैश डीलिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, कोई भी कैश ट्रांजैक्शन आप किसी के साथ भी मत करिएगा। अभी पे आउट यानी आपने जब भी माल बेचा है तो आपको T+2 पे वो स्टॉक्स देने हैं, डेरिवेटिव्स में आपने बेचा तो T+1 पे आपको उसका पेमेंट आ जाना चाहिए। स्टॉक ब्रोकर को फंड ट्रांसफर करना है 24 घंटे में, उनके पास फंड आते ही एक्सचेंज फंड जब भी आता है तो 24 घंटे में आपके अकाउंट में उनको पे आउट देना ही है। पे इन होता है जब भी ये ब्रोकर जब भी करता है तो इन्वेस्टर्स को कंफर्मेशन ये पहले से होना चाहिए कि आपने शेयर्स बेचे हैं तो शेयर्स आपके पास अवेलेबल है कि नहीं एग्जीक्यूशन के पहले। और पीओए जो दिया नहीं है तो आपको ट्रांसफर शेयर्स ट्रांसफर करने हैं ब्रोकर के अकाउंट में जो वो एक्सचेंज में दे सकता है, DIS स्लिप भर के आपको अपने रीपी में देना है, जो अपने वो शेयर्स आपको ब्रोकर का ट्रांसफर करेंगे और ब्रोकर फिर एक्सचेंज को दे देगा। इनकेस डिफॉल्ट कोई होता है पे इन में या शॉर्ट डिलीवरी होती है तो उसमें डिलेड पेमेंट चार्जेस लगा सकते हैं ब्रोकर। ये इन्वेस्टर जब भी पेमेंट डिले करता है, आपने T+2 पे पैसा नहीं दिया ब्रोकर को तो ब्रोकर आपसे ये डिलेड पेमेंट चार्जेस ले सकता है। नॉर्मली अवॉइड करना है ये करने के लिए क्योंकि ब्रोकर का भी पैसा लगा है सामने एक्सचेंज में, और एक्सचेंज अलाउ नहीं करता है कि कोई भी ब्रोकर कोई भी फंडिंग करे किसी क्लाइंट के लिए। तो ये लगाना केवल खाली कि ये ना हो इसी कारण से ये लगाया है, लगाते हैं ब्रोकर भी। तो आपको अपने T+2 पे पैसे आपको जमा करने ही है। आपने सपोज कोई भी शेयर सेल किया है और आपने डिलीवरी नहीं दे पाए T+2, T+1 या T+2 तक, तो ये सब शॉर्ट डिलीवरी माना जाता है। और एक ऑक्शन जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एक ऑक्शन करती है T+2 के बाद, इसमें आप नॉर्मली मार्केट रेट से हायर में ऑक्शन होता है, लॉस जो भी होता है वो आपको चुकाना पड़ेगा आपके ब्रोकर को। तो शेयर्स आपके पास रेडी है तो ही आप बेचिएगा, ऐसे ही बेच के फिर मत बोलिएगा कि बाद में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे या देखते हैं शेयर्स कहाँ पड़े हैं। पहले आप डिसाइड कर लीजिए कहाँ शेयर्स है, आप कैसे ट्रांसफर करोगे ब्रोकर को, उसके बाद ही सेल ट्रांजैक्शन करिएगा। सेटलमेंट प्रोसेस और रनिंग अकाउंट ये दोनों के बारे में है। पे आउट T+2 पे होता है
और सेटलमेंट ऑफ फंड्स एंड सिक्योरिटीज जो होता है विद इन 1 वर्किंग डे ऑफ पे आउट 24 घंटे में आपके अकाउंट में आना चाहिए। आपने जो इसको रनिंग अकाउंट बताया है, आपके ब्रोकर के पास एक केवाईसी साइन करते वक्त रनिंग अकाउंट का सिग्नेचर लेते हैं आपके पास। जो रनिंग अकाउंट है तो फिर पैसा ब्रोकर के पास ही पड़ा रहता है, आपके अकाउंट में आता नहीं है जब तक आप मांगोगे नहीं तब तक। तो ये ऑथराइज करता है कि क्लाइंट ब्रोकर को राइटिंग में दिया है कि मेंटेन रनिंग अकाउंट मेंटेन करना है। फंड सिक्योरिटी दोनों ब्रोकर के पास रहेगी, पर ये मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे एक बार आपके अकाउंट में आनी चाहिए। तो एवरी मंथ या एवरी 3 मंथ्स ब्रोकर को आपके अकाउंट में वो भेज देगा फंड्स एंड सिक्योरिटी दोनों। तो ब्रोकर के पास आपका जीरो हो जाएगा, जो भी आपका पैसा पड़ा है आपके अकाउंट में आ जाएगा, जो शेयर्स पड़ा है आपके डीपी में आ जाएंगे, वो खुद नहीं रखेगा। और ब्रोकर को ये गैप मिनिमम 30 या 90 डेज का गैप रखना है दो सेटलमेंट रनिंग अकाउंट सेटलमेंट के बीच में। आपका रनिंग अकाउंट है तो मंथली या क्वार्टरली आपको ब्रोकर को सेटल करना ही है, आपको आपके पैसे और शेयर्स लौटानी ही है। डिलीवरी इंस्ट्रक्शनशिप जो पता है वो चेकबुक की तरह होती है जो डीमैट में यूज होती है। जब भी आप शेयर्स बेचते हो तो डीआईएस आपको इशू करना है, डीआईएस जाके देना है डीपी में। डीआईएस देने के बाद ही आपके शेयर्स ट्रांसफर होते हैं ब्रोकर के अकाउंट में या एक्सचेंज के अकाउंट में, उसके पहले नहीं होंगे। तो आपने शेयर्स बेचे हैं तो डीआईएस भरना कंपलसरी है। अनलेस आपने पीओए दिया है तो डायरेक्टली आपके अकाउंट से ब्रोकर ले लेगा, पर पीओए नहीं है तो ये डीआईएस आपको जाके आपके डीपी में सबमिट करना है। ये एक टाइप्स ऑफ डीआईएस है, इंट्रा डिपॉजिटरी, सीडीएसएल टू सीडीएसएल, एनएसडीएल टू एनएसडीएल होता है, और इंटर डिपॉजिटरी भी होता है। कभी कभी सीडीएसएल टू एनएसडीएल और एनएसडीएल टू सीडीएसएल भी वो यूज कर सकते हैं, अलग अलग डीआईएस होता है। तो ये डीआईएस क्यों होता है, तो डीपी को डेबिट करना है आपके खाते से शेयर्स, आपके ले लेने हैं शेयर्स, तो उनको ये राइट मिलता है। आप जब भी लिख के देते हो तो उतने शेयर्स आपके अकाउंट से वो उठा के ब्रोकर के अकाउंट में या जहां आपको ट्रांसफर करने हैं वो वहां ट्रांसफर कर सकते हैं। जस्ट एक आपका चेक होता है, जो चेक के बाद, चेक डिपॉजिट करने के बाद या इशू करने के बाद ही बैंक से पैसा चाहता है, वैसे ही डीआईएस स्लिप से होता है। तो डीआईएस स्लिप आपका चेकबुक जैसा है, वो आपको अच्छे से मेंटेन उसको भी करना है, सेफली मेंटेन करना है, किसी और के हाथ में या साइन करके पहले से मत रखिएगा, किसी और के हाथ में मत जाने दीजिएगा। ऑफ मार्केट भी ट्रांजैक्शन हो सकते हैं इसमें और शेयर्स आपके अकाउंट से चले जा सकते हैं। ये डीआईएस स्लिप का एक कॉपी है, जैसे नॉर्मली दिखता है। ये एनएसडीएल का डीआईएस स्लिप है, ये ऐसे दिखता है। इसमें सारा इंफॉर्मेशन आपको फिल करके आपके डीपी में जाके देना है, जो फिर बाद में जाके एनएसडीएल को शेयर्स ट्रांसफर करने के लिए बोलेंगे। अभी ये ट्रेडिंग जो फंड्स आपने रखे हैं उसमें क्या है कि इन्वेस्टर को मेक श्योर करना है कि जितने फंड्स है खाली पे इन और मार्जिन उतने ही फंड्स रखने हैं, ज्यादा फंड्स आप ब्रोकर के पास मत रखिए। अननेसेसरी वहीं पड़े रहने से अच्छा है आप मंगवा लीजिए, जितनी जरूरत है उतना ही रखिए। जब भी फंड्स की जरूरत है ट्रांसफर करिए स्टॉक ब्रोकर को, वो इमीडिएटली ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाता है। जितनी जरूरत है उतने ही ट्रांसफर करिए, एक्स्ट्रा मत करिएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके आपके पास जो आते हैं वो स्टॉक ब्रोकर के नाम से ही आते हैं, वो आपको देखना है। स्टॉक ब्रोकर को आपको क्वार्टरली और मंथली सेटलमेंट करना बोलना है। एवरी मंथ एवरी 3 मंथ्स आपके पास आपके पैसे या शेयर्स मंगवा लेने हैं। ऐसा ना हो, कभी कभी कोई स्टॉक ब्रोकर में प्रॉब्लम हो जाती है और आपका पैसा या शेयर्स अटक गए तो बाद में लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है वो वापस क्लेम करने के लिए। आप अपना लेजर अकाउंट पीरियोडिकली ब्रोकर के साथ का टैली कर लीजिए, चेक कर लीजिए कि आपको अकाउंट लेजर अकाउंट बराबर दिख रहा है कि नहीं, सारे इसमें एंट्रीज है कि नहीं। कुछ भी आपको सस्पिशन लगता है, कुछ आपको उसमें लगता है कि बराबर नहीं है, तो स्टॉक ब्रोकर को या एक्सचेंज को या सेबी को इमीडिएटली इंटीमेट कीजिए, इमीडिएटली बताइए, तो आपका इशू वहीं का वहीं सॉल्व हो सकता है। जो आपको अभी नहीं करना है तो वो नहीं करना है, कोई भी फंड्स ब्रोकर के पास ऐसे ही पड़े नहीं रहने चाहिए, जितना जरूरत है उतना ही वहां होना चाहिए। ये चेक्स, कोई भी नाम आपको, आप साइन चेक्स या ऑथराइज पर्सन चेक्स, थर्ड पार्टी चेक, कोई भी चेक आप मत रखिएगा आपके ब्रोकर के पास। जब भी जरूरत है तभी जाके चेक दीजिए। साइन प्री साइन चेक होगा, ब्लैंक चेक्स होगा, ब्लैंक डीआईएस स्लिप होगा, कभी भी किसी को मत दीजिए, ना स्टॉक ब्रोकर, ना ऑथराइज पर्सन, ना एम्प्लॉय ऑफ स्टॉक ब्रोकर, किसी को ये नहीं देना है। आपके पास होना चाहिए, आपको जब भी जरूरत है तभी आप जाके ये करोगे। तो ये था जो आपको करना है बाइंग सेलिंग के वक्त, आपको जो ध्यान रखना है उसके ऊपर। अभी आई थिंक मैम विल कंटिन्यू उनका प्रेजेंटेशन। Thank you, sir. मोस्ट वेलकम। I'll share my presentation. कुछ और
ओके, मैं कंटिन्यू करती हूँ जहाँ से मैंने छोड़ा था। ओके, NSDL जो है, I'll put everyone on mute. Yes. So NSDL जो है अपने इन्वेस्टर्स को वेरियस ई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिससे उनको बेनिफिट हो। तो जैसे कि स्पीडी, ये स्पीडी कौन सी फैसिलिटी है? जब भी हम लोग शेयर सेल करते हैं तो हमें उस एक इंस्ट्रक्शन देना होता है अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को, which is called a delivery instruction slip. Now, during period of COVID, जब it was not possible even for people to approach DP or DP offices were closed, what would happen in such a scenario? ये स्पीडी जो फैसिलिटी थी वो बहुत टाइम से फैसिलिटी अवेलेबल थी, लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने ये फैसिलिटी यूटिलाइज नहीं की थी। So all of you who don't have not utilized Speedy, Ideas, e-voting or mobile app, please do so because it will help you. Now Speedy एक फैसिलिटी है जहां से यूजर्स अपने वेरियस इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। इसे रजिस्टर करने के लिए आपको हमारे वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना होगा। सेकेंडली, आइडियाज एक फैसिलिटी है जहां पे आप अपने ट्रांजैक्शंस और होल्डिंग्स जो है अकाउंट में वो व्यू कर सकते हैं। और एक फैसिलिटी है जैसे कि सब्सक्राइब टू कैश लिखा है यहाँ। CAS क्या है? कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट है। जैसे कि बैंक अकाउंट में जब भी आपका अकाउंट होता है आपको एक स्टेटमेंट या पासबुक मिलता था जहां से आप समझ पाते थे कि आपके अकाउंट में कितने डेबिट्स, कितने क्रेडिट्स और क्या अकाउंट बैलेंस है। उसी तरह आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शंस या उसके होल्डिंग्स देखने के लिए आपके पास ऑप्शन है कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट का, जो आपको साल में 2 बार NSDL पोस्ट से भेजते थे। लेकिन अभी जो है ड्यूरिंग कोविड वी हैव सेंडिंग ई-कैश भेजा है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट आपके ईमेल आईडी पे भेजा है। तो आप अपना ईमेल आईडी को अपडेट कर सकते हैं फॉर कैश ऑन आइडियाज। व्यू एंड डाउनलोड, अगर आपको पिछले 1 साल के कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट देखने हो, आप आइडियाज फैसिलिटी में जाके आप डाउनलोड करके आपके स्टेटमेंट देख सकते हैं। और यू कैन पार्टिसिपेट इन ई वोटिंग। ना ई वोटिंग क्या है? जब भी आपके पास आप शेयर होल्डर हो किसी कंपनी के, तो आपको एक वोटिंग राइट दिया जाता है एज अ शेयर होल्डर और द ओनर ऑफ द कंपनी। इन द पास्ट हमें पोस्टल बैलेट से आता था, हम साइन करके उसे एनवेलप में पोस्ट करके कुरियर से या पोस्ट ऑफिस से भेजते थे। लेकिन अभी ये फैसिलिटी और भी इजी हो गई है जहां पे आप कंपनीज के कोई भी रेजोल्यूशन हो, जैसे चेंज ऑफ डायरेक्टर्स, रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, डिसइन्वेस्टमेंट, डाइवर्सिफिकेशन वगैरह, अगर कोई रेजोल्यूशन हो तो उन्हें वोट करने के लिए आप घर पे बैठे बैठे वोट कर सकते हैं। देखो, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस किसी भी एजीएम में जाने को। कुछ एजीएम्स कैलकाटा, दिल्ली, बैंगलोर, ऑल दोस प्लेसेस में होते हैं, सो इट्स इनकन्वीनियंट। अभी घर पे बैठे बैठे आप ई वोट, आप अपना वोट कास्ट कर सकते हो NSDL की ई वोटिंग के प्लेटफॉर्म से। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट न हो तो आप ई वोट कर सकते हैं। तो कंपनी गिव्स यू द यूजर आईडी पासवर्ड इन ऑर्डर टू log in and avail this e-voting facility. Mobile app, जैसे कि you can download this mobile app from the Google Play Store or from the Apple store. Now मोबाइल ऐप पे क्या हमें दिखता है? वी कैन व्यू द होल्डिंग्स अलोंग विद वैल्यूएशन। जो हमारे अकाउंट में होल्डिंग्स है उसकी वैल्यूएशन भी दिख सकते हैं। यू कैन पार्टिसिपेट, ई वोटिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप EDIS के कंफर्मेशन भी दे सकते हैं थ्रू मोबाइल ऐप एंड यू कैन रजिस्टर फॉर आइडियाज फैसिलिटी। अभी ये जो ई फैसिलिटीज जो मेंशन किए हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है इन्वेस्टर्स को। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल फॉर ऑल दोस, आपने अगर इन फैसिलिटी
एक्टिविटीज की सर्विस अवेल नहीं की है तो प्लीज गो अहेड एंड अवेल. आइदर यू कैन लॉग on to NSDL website and do it, or you can approach your DP. Now, to be a prudent investor, you need to keep records of documents जैसे कि अकाउंट स्टेटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, पेमेंट्स मेड, इसके डिटेल्स आपने रखने चाहिए. आप अपने पासवर्ड ऑनलाइन अकाउंट्स के फ्रीक्वेंटली अपने चेंज करने चाहिए और उसकी OTP और पिन किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए. यू शुड रीड जो भी मैसेज आता है, ईमेल, SMS, लेटर, स्टेटमेंट अपने DP से या NSDL से या बैंक या ब्रोकर से, यू शुड आपने पढ़ने चाहिए क्योंकि ये सब चीजें आपको अपडेटेड रखते हैं. और लास्ट इज जब भी आप DI स्लिप लेते हैं बुक, तो आपको ये बुक फॉर्म में लेने चाहिए और वो जैसे चेकबुक होता है उसी तरह DIS बुक भी DP आपको प्रोवाइड करनी चाहिए जिसमें आप आपका क्लाइंट ID एंड DP ID प्री प्रिंटेड हो. ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि हम कहते हैं कि आप अपना पर्सनल डिटेल्स, बैंक एड्रेस, अकाउंट नंबर वगैरह अगर चेंज होता है तो अपने DP से अपडेट करें क्योंकि इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन SMS द्वारा या ईमेल द्वारा आपको दी जाती है. Then unsolicited SMS या you should avoid entertaining such messages. And NSDL का एक पब्लिकेशन है, अगर आपको इससे अवेल करना हो तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके एजुकेशन टैब में जाके ये फाइनेंशियल कलाइडोस्कोप आप अवेल कर सकते हैं. और इन्वेस्टर प्रोग्राम्स जो है NSDL के हर महीने में जो होते हैं उसकी डिटेल हम वेबसाइट पे बिगिनिंग ऑफ द मंथ रखते हैं, तो आप वहां जाके आप प्रोग्राम्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं. Now, ये था जो न्यूज़लेटर है. आपको अगर ये न्यूज़लेटर ये हिंदी और इंग्लिश में ही प्रिंट किया जाता है और आपको अगर अवेल करना हो या देखना हो आपको हमारे एजुकेशन टैब में जाके उसे चेक कर सकते हैं. ये कुछ नंबर्स है, अगर आपके कुछ कंप्लेंट्स हो या ग्रीवेंसेस हो किसी भी एंटिटी के साथ तो आप सेबी को लिख सकते हो, या DP के साथ आपके कुछ कंप्लेंट्स हो तो NSDL को फोन या लिख सकते हो. और NSDL के बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप info@nsdl.co.in इस ईमेल ID पे लिख सकते हैं. और आपके कोई भी ग्रीवेंसेस हो तो relations@nsdl.co.in पे आप ये स्क्रीन जो है अभी फ्लैश हुआ है उसका एक फोटो ले सकते हो आप, ताकि आसानी से यू कैन रिकलेक्ट एंड गेट इट. ये था हमारा प्रेजेंटेशन ऑन NSDL जो अभी है. आई विल स्टॉप शेयरिंग. We will now take the question answers. I will just see if there are any questions which have come on chat, and maybe I will answer them. Mr. Shah, there is one question, but it is not related to our topic today because there are no other questions. The question is, Mr. Shah, are you available? Mr. Shah? Hi. ये question में I have to unmute participants. Yeah, sorry, I think that was mute. It was locked. I saw that. I had muted people because I was getting an echo. So there is one question for you, sir. Maybe it is not relevant to the topic for today, but it is on pledge. And it says, why should we go for pledging of stocks? Pledging stock now made necessary. SEBI ने necessary किया है margin के लिए.
आप जब भी ट्रेड करते हो मार्जिन रिक्वायरमेंट सेबी ने बोला है कि 25% मार्जिन जो भी वैल्यू का है वो आपके पास अपफ्रंट रहना चाहिए। तो उसी कारण से ये प्लेज अनप्लेज शुरू किया है। प्लेज में स्टॉक है तो ही उसके सामने मार्जिन दिया जाएगा, अनप्लेज स्टॉक के सामने मार्जिन नहीं दिया जाएगा, इसीलिए वो प्लेज अभी कंपलसरी हो गया है। Thank you, sir. There is another question which I think I will take. Procedure for account change, please. I don't have the name of this person. Can you unmute yourself and ask this question? What is it relating to? This is regarding how do I change my account. The one which I am operating now, I have to change that. Linking of the account. Okay. That is Mr. Shah, Yes. can you take that? Yeah, account means you want to the bank account, DP account, or trading account. Which account are we talking about? the bank account. Bank account. So you just have to go to your broker and there is a modification form that you have to fill, and you have to take a cancel check along with a new account, and you have to submit that to the broker, and they will do the needful within 24 hours. They will change the link and also your bank account details on their record. Okay, thank you. सर मैं परमार संदीप बोल रहा हूँ। कोई कंपनी के बारे में कंप्लेन करने की हो तो कहाँ से कर सकते हैं? कंपनी के बारे में कंप्लेन करना तो आप सेबी में कर सकते हैं। स्कोर्स है उनका कंप्लेन का, स्कोर्स पे जाके आप वहां कंप्लेन डाल सकते हो सेबी में डायरेक्टली। क्योंकि काफी कंपनियां ऐसी है जो चलती नहीं है, बस ऑपरेटर बेसिस चलती है। सर वो कोई तो ठिकाना नहीं होता है कंपनी। जब मैं सर्च करता हूँ ना तो सर सेबी इसमें कुछ ज्यादा कर नहीं पाएगी, क्योंकि क्या है कि सेबी कंपनी का कोई जेन्युइन आपका कंप्लेन है या डिविडेंड नहीं मिल रहा है, डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद नहीं आपको भेजा है या आपके शेयर ट्रांसफर नहीं हो रहे, तो आप सेबी आपका सुनेगी। ये सब तो क्या मार्केट का कंडीशंस है, ऐसी कंपनीज बहुत सारी चल रही है। आप ये कंपनी से दूर ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि इसमें लॉस होने का चांसेस काफी हाई होता है। तो उसमें सेबी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ, सेबी एक इंक्वायरी बिठा सकती है कि भाई इसमें प्राइस एकदम बढ़ गया या एकदम गिर गया तो क्यों हुआ, बट उसके आगे ज्यादा कुछ करती नहीं है। तो ये आपको ही थोड़ा ध्यान रखना है ट्रेडिंग करते वक्त या इन्वेस्टमेंट करते वक्त कि ऐसी कंपनी से दूर ही रहे। ओके सर, थैंक यू सर। Hello. Myself Praveen Kumar.